Good morning students. Today we are starting chapter number 6 of your Indian Economic Development book, that is Economic Reform since 1991 और New Economic Policy। इस चैप्टर में हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो बेसिक कंपोनेंट हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं LPG, इसके बारे में भी हमें इसमें पढ़ना है। इसके क्या मेरिट्स रहे, क्या डीमेरिट्स रहे, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। First topic is meaning of economic reforms and new economic policy. Economic reform refers to a set of economic policies directed to accelerate the pace of growth and development. Economic reforms क्या होते हैं? Economic policies का एक पूरा सेट होता है जिसमें मेन जो वर्क होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। It accelerates the pace of growth and development. In 1991, the government of India initiated a series of economic reforms to pull the economy out of the crisis of the 90s. 90s में इंडिया की कंडीशन बहुत ख़राब थी, फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी चल रहे थे। तो 1991 में जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एक सीरीज इनिशिएटेड की थी, उसको नाम दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देयर आर 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फर्स्ट वन इज लिबरलाइजेशन, मीन्स द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। सेकेंड वन इज द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटास फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट। And third one is globalization, the policy of globalization in place of permits for export and import. Thus, this is known as the LPG, which replaced the LQP in 1991. इसको क्या नाम दिया गया? इस पॉलिसी को LPG नाम दिया गया, जिसने रिप्लेस किया था LQP को। लिबरलाइजेशन, लाइसेंसिंग की जगह उसमें लिबरलाइजेशन किया गया था। लाइसेंसिंग में पी में कोटास को का जो था फिक्सेशन, उसको हटाया गया था। प्राइवेटाइजेशन को प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को दिया गया था कोटास। नेक्स्ट इज परमिट्स, जो परमिट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो परमिट थे उन्हें परमिट फ्री किया गया था, तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। सो LPG वॉज सेट टू रिप्लेस द LQP in 1991. The second topic is need for the new economic policy or economic reforms. Here some point are given which was felt owing to the needs, or we can say that these are the reasons why we needed new economic policies. First is high fiscal deficit. Fiscal deficit refers to the borrowing by the government on account of excess of its expenditure over revenue. जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और रेवेन्यू कम होता है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से बोरो करता है वो पैसा, उसके कारण भी हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत थी। हाई फिस्कल डेफिसिट इज़ बैड बिकॉज इट इंडिकेट्स पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी. It triggers inflation which hinders the process of growth. It lowers the faith of international institutions like World Bank in the government of the country with regard to the management of the economy. ये bad effects होते हैं fiscal deficit के, इसके कारण हमें new economic policy की ज़रूरत थी। Second is BOP crisis. BOP means balance of deficit, balance of payment. Balance of payment crisis refers to the BOP deficit, the difference between total receipt and total payment of the government on accounts of economic transaction with the rest of the world. गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो जो हमारी रिसिप्ट्स हैं वो कम रहे और पेमेंट ज़्यादा रहे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट शो होगा। ये भी बैड इफेक्ट है, इसके कारण ही हमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी। बाय द एंड ऑफ 1990 आवर BOP अकाउंट्स रिवील्ड दैट current account credit was mounting up and borrowing from the rest of the world were consistently high. That's why India needs a new economic reforms, or we can say that new economic policy. Third one is fall in foreign exchange reserve. In 1991, India's foreign exchange reserve fell such to low that these were not enough to pay our import bill of even 10 days. इंडिया की जो कंडीशन थी 1990 से 91 के बीच की, वो ऐसी थी कि इंडिया के पास 10 डेज के पेमेंट का भी, इंपोर्ट बिल के पेमेंट्स का भी फॉरेन रिजर्व नहीं था। फॉरेक्स रिजर्व दैट वर ₹8151 करोड़ in 1986-87 declined sharply to 6252 crore in 1890. This situation became so serious that the government had to mortgage country's gold reserve with the World Bank to for the debt of its obligation. ये कंडीशन आ रही थी, इसके कारण हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशनरी स्पायरल। इन्फ्लेशनरी स्पायरल मतलब हुआ
Prior to 1991, despite good monsoon for 3 consecutive years, there was a inflationary spiral in the country, क्योंकि हमारे इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर, और वो ऑक्यूपेशन जो डिपेंड है वो मानसून पे डिपेंडेंट है। तो कंटिन्यू 3 ईयर्स तक अच्छा मानसून रहने की वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छा रहा, प्रोडक्शन वगैरह बहुत अच्छा रहा, और उसके कारण एक इन्फ्लेशनरी स्पायरल कंट्री में क्रिएट हो गया। इन्फ्लेशन वॉज ट्रिगर्ड बाय द रैपिड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, इससे मनी सप्लाई भी बढ़ गई। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, economic crisis deepened from bad to worse. The need for new economic policy was further strengthened. Then last one is poor performance of the public sector undertakings. Public sector undertakings मतलब वो companies, वो corporations जो government के अंदर में है, जिसमें ownership government की है। Several thousand crores of rupees were invested in the growth and development of PSUs in India, but most of these turned out be breeding center of corruption. It led to the huge losses. New economic policy was needed to reverse this trend. Here third concept is given, that is elements of new economic policy. जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके 3 मेन एलिमेंट थे, 3 बेसिक एलिमेंट्स थे। फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन, सेकेंड वन इज प्राइवेटाइजेशन, एंड थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज LPG. Here we are taking first point, that is liberalization. Liberalization of the economy means freedom of the producing units or freedom of the manufacturing units from direct or physical control imposed by the government. जो गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल लगाती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स पे, उन सारे फ्री कंट्रोल्स से, उन सारे लॉज से इनको फ्री कर दिया गया था मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस को। फॉलोइंग आर सम नोटेबल ऑब्जर्वेशन इन दिस रिगार्ड। Prior to 1991, government has imposed several types of control on the private enterprises in the domestic economy. These included industrial licensing, price control or financial control on goods, import license, foreign exchange, restriction on investment by big business houses. इन सब पे गवर्नमेंट ने काफ़ी कंट्रोल्स, काफ़ी लॉज, लीगल रूल्स लगा रखे थे। It was experienced by the government that several shortcomings had emerged by the economy on account of these control. फिर स्लोली गवर्नमेंट को समझ में आया कि ये जो शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं, जो बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं इकोनॉमी पे, ये इन सारे रूल्स की वजह से, ये जो इन्होंने कहना चाहिए कि इकोनॉमी पे जो कंट्रोल्स लगा दिए हैं उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। सो दीज कंट्रोल हैड गिवन राइज टू करप्शन, अनड्यू डिलेज एंड एफिशिएंसी। गवर्नमेंट ने ये कंट्रोल लगाए क्यों थे? ये 2 रीजंस की वजह से लगाए गए थे, ताकि प्राइवेट मोनोपोलीज की ग्रोथ को चेक किया जा सके और लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस जो हैं उनको प्रॉपर गवर्नमेंट अपने अंडर में रख सके, ताकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो। Next point is growth rate of GDP had fallen sharply and high cost economic system came into being. जो growth rate था GDP का वो fall होने लगा और economic system की जो cost थी वो बहुत ज़्यादा थी। इन reasons की वजह से liberalization करना पड़ा। In the view of these facts, liberalization of the economy was considered as the key component of NEP. Greater reliance was to be placed on the market forces rather than checks and control. Examples of developing countries like Korea, Thailand, Singapore that have achieved rapid growth only due to the liberalization. That's why it is considered as the main point. Economic reforms were based on the assumption that the market force would drive the economy towards the path of competitive growth and development. जो economic reforms आए थे ना, ये जो liberalization, privatization और globalization, ये mainly इस assumption पे based थे, इस मान्यता पे based थे कि जो market force होता है country का, जो economy को चला सकता है, वो ही country की economic growth कर सकता है और economic development के लिए वो responsible है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। अब जो लिबरलाइजेशन हुआ था उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स इंक्लूड थे? फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। लिबरलाइजेशन वर्चुअली एम्प्लाइड डीरेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर हाईलाइटेड हियर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंज है? फर्स्ट, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। इन जुलाई 1991 अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड। इट अबोलिश द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट द फॉलोइंग 5 इंडस्ट्रीज। इन 5 इंडस्ट्रीज़ के अलावा कहीं कोई लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं था, बस इन 5 इंडस्ट्रीज़ में लाइसेंसिंग होना ज़रूरी है। लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस केमिकल्स। इसके अलावा सारी लाइसेंसिंग को अबोलिश्ड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर वॉज रिजर्व फ्रॉम 17 to 8। पहले कितनी थी? 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी।
अब उनको कम करके कितना कर दिया गया, सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो पब्लिक सेक्टर थी, बाकी सारी को क्या कर दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया था। द नंबर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वाज रिड्यूस्ड मेयरली टू और अब 2010-11 में जो पॉलिसी आई उसमें तो सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज रह गई हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मेनली एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। Third one is de-reservation of production areas. Many production areas which earlier were reserved for small scale industry were de-reversed. Forces of market were allowed to determine the allocation of resources. Next one is expansion of production capacity. Earlier production capacity was linked with the licensing. Now freedom from licensing implied freedom from capacity. What to produce, how to produce is now the matter of producer choice depending on the market condition. पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, अब सब कौन डिसाइड करता है, एक प्राइवेट बिजनेसमैन और मार्केट कंडीशन को देख के ही वो ये सब डिसाइड करता है। ये सब पॉइंट लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर है। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। लिबरलाइजेशन ऑल्सो इम्प्लाइड फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स विद व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी। अब किसी गवर्नमेंट की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, अगर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो कैपिटल गुड्स को ईजिली इम्पोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हुई। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय द आरबीआई। आरबीआई जो जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर है इंडिया का, वो कौन कंट्रोल करता है, कौन उसको गवर्न करता है, कौन उसको रेगुलेट करता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। लिबरलाइजेशन इम्प्लाइड अ सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू द फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। लिबरलाइजेशन से ये हुआ कि आरबीआई की जो रोल हो गया वो रेगुलेटर की जगह किसका रोल हो गया, फैसिलिटेटर का। अब वो रेगुलेशन नहीं करता, चलाता नहीं है, बल्कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है एज अ फाइनेंशियल सेक्टर। Next, as a regulator, the RBI prior to the liberalization would itself fix interest rate structure for the commercial bank. अब ये liberalization के पहले जो RBI था वो खुद ही तय करता था कमर्शियल बैंक्स के लिए प्रॉपर इंटरेस्ट रेट के स्ट्रक्चर। बट एज अ फैसिलिटेटर आफ्टर लिबरलाइजेशन, जब हम लिबरलाइजेशन के बाद की बात करते हैं, सो द आरबीआई नाउ वुड ओनली फैसिलिटेट द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्स एंड लीव टू द कमर्शियल बैंक टू डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट एंड स्ट्रक्चर। अब आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को फ्री कर दिया है, वो चाहे जैसा भी रेट तय कर सकते हैं, फ्री मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट तय कर सकते हैं। Now competition rules the decision making process. Free play of market force has led to the emergence of private bankers, both domestic as well as international, in the Indian banking industry. Liberalization has also allowed foreign institutional investor to invest in Indian financial market. Example of FII, foreign institutional investor like merchant banker, mutual funds and pension funds. तो ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी आने के हमें ये फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी एडवांटेजेस मिले। थर्ड वन इज़ फिजिकल रिफॉर्म्स। अभी फिजिकल रिफॉर्म्स क्या होते हैं? सो फिजिकल रिफॉर्म्स रिलेट टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो इनकम होती है और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है उसकी जो पॉलिसी होती है वो कहलाती है फिजिकल पॉलिसी। इस पॉलिसी से गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? सो थ्रू दिस पॉलिसी गवर्नमेंट वांट टू अचीव स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी बाय मैनेजिंग देयर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर। Tax reforms are the principal component of fiscal reforms. Broadly, taxes are classified into two categories: direct taxes and indirect taxes. Direct taxes are those burden of which cannot be shifted from one person to another. Example of direct taxes like income tax, wealth tax, जिस पे वो टैक्स इम्पोज हुआ है उसको वो टैक्स पे करना ही पड़ता है, उसका बर्डन कभी शिफ्ट नहीं होता। And indirect tax is the tax which is levied on goods and services, are those taxes the burden of which shifted into others, जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने अभी जो देख रहे हैं आप, वो जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, कि जिस पे वो टैक्स रियल में इम्पोज होता है वो अब उस बर्डन को शिफ्ट करता जाता है, मतलब गुड्स की प्राइजेस में वो टैक्स इंक्लूड रहता है। वन हु पेज सच अ टैक्स, अ शॉपकीपर पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट कैन शिफ्ट द बर्डन टू द टैक्स टू द फाइनल बायर ऑफ द गुड्स बाय एडिंग द टैक्स ऑन द बेसिक प्राइस ऑफ द गुड्स।
Prior to the liberalization, tax revenue in the country has been highly complex. Fearing of heavy burden of taxation, people would often evade taxes. टैक्स के हैवी बर्डन से बचने के लिए लोग टैक्स की चोरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर की चोरी, भी करते थे. पर अब कंडीशन ये है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है बहुत सिंप्लीफाइड हो गया है. दिस रेज द टैक्स कॉम्प्लियंसेस एंड देयरफॉर टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया है. लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लिबरलाइजेशन का इकोनॉमिक रिफॉर्म इज एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स. एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन 1991 विद द डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपीज अगेंस्ट फॉरेन करेंसी. डिवैल्यूएशन मतलब ये होता है कि डॉलर या अदर करेंसीज के कंपैरिजन में जो हमारी करेंसीज है हमें ज़्यादा पे करना पड़े. सपोज हम $1 अभी 60 रुपीज़ में खरीद रहे हैं, फिर हम $1 70 रुपीज़ में खरीदेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि हमारी करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया है. डिवैल्यूएशन इम्प्लाइज फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपीज से US डॉलर इन इंग्लिश पाउंड और इंग्लिश पाउंड. इम्प्लाइंग द US डॉलर और इंग्लिश पाउंड कैन बी एक्सचेंज फॉर more rupees than before, implying that the US dollar can buy more goods in the Indian market. This has increased the supply of foreign currency in the Indian market by the way of higher export domestic goods and services. Followed by devaluation in 1991, the exchange value of Indian rupee in the international money market was left to free play of market forces. ये कंडीशन के बाद जब इंडिया की कहना चाहिए रुपी डंप होने लगा या डिवैल्यूड होने लगा, सो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लेके आया था ये ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी, तो उसमें फ्री कर दिया गया मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे अब डॉलर की और रुपीज़ की प्राइस तय होने लगी. प्रेजेंटली एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट. Now, foreign trade policy underwent a substantial change in the wake of liberalization. Tariff restrictions have been considerably moderated, rather withdrawn from many items of import and export. कई पहले 1991 के पहले कई आइटम्स के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट ने टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे. अब इसको भी गवर्नमेंट ने इजी कर दिया है. ईजिली कोई भी आप गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो. हाँ, गवर्नमेंट अभी भी प्रोटेक्शन रखती है, बट थोड़ा इजी कर दिया है. सर्वाइवल ऑफ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी ईजी ड्यू टू फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड कोटाज. Now the next component of the economic reforms is privatization. Privatization is the process of involving the private sector in the ownership or operation of the state-owned enterprises. जो भी गवर्नमेंट के enterprises हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना वो कहलाता है privatization. It implies gradual withdrawal of government ownership from the public sector enterprises. It may happen in two ways. ये कैसे हो सकता है? दो तरीकों से. First, outright sale of government enterprises to the private entrepreneur, and second, withdrawal of the government ownership and management from the mixed enterprises, or we can say that the enterprise is jointly owned and managed by the government and private entrepreneur. गवर्नमेंट क्या करे, अपनी जो ऑनरशिप है अपने enterprises की या मैनेजमेंट की वो किसके साथ शेयर कर ले, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के साथ, तो एक मिक्स्ड एंटरप्राइजेस क्रिएट हो जाएगी. इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी कहते हैं. जैसे डिसइन्वेस्टमेंट इज द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रिवेंट प्राइवेटाइजेशन. इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, जो अपनी ऑनरशिप हटा के मेन ऑनरशिप किसको दे देती है, प्राइवेट इंडिविजुअल को दे देती है. वाई देयर इज़ अ नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन. अब जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है, सो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं पढ़ती हूँ वो पॉइंट्स. द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान असाइडिंग की रोल टू द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. जो सेकेंड 5-year प्लान आया था उसमें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत महसूस हुई और वहीं से इसका शुरू हुआ, प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ. द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था. IPR 1956 क्लियरली एंड कैटेगरीली स्टेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ PSUs इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट इज़ बियॉन्ड डाउट दैट इट वॉज थ्रू द स्प्रेड ऑफ PSUs दैट इंडिया could diversify the industrial base between the period of 1951 to 1991. It was account of spread of PSUs that the Indian economy underwent a structural transformation. जो 1950 से लेके 1991 तक गवर्नमेंट का जो वर्क था उसके बेसिस पे एक यही चीज़ समझ में आई थी कि इंडिया को अगर डाइवर्सिफाई करना है, अपनी इंडस्ट्रियल बेस को बनाना है अच्छा, तो ज़रूरत सिर्फ किस चीज़ की है, प्राइवेटाइजेशन की. प्राइवेट सेक्टर जितना ज़्यादा वर्क करेगा
उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। PSU gave us Navratnas, 9 jewels of the Indian industry besides a host of mini रत्न। जो 9 कंपनीज हैं जो पब्लिक सेक्टर्स की हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनको नवरत्न के नाम से बोला जाता है। आपकी बुक में दी हुई है, आप देख लीजिएगा उन कंपनीज के नेम, बेल, सेल, ये सब उसमें ही आती हैं। ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर enterprises turned into the social death weight, amounting losses of PSU became unsustainable। पर स्लोली इंडिया की जो PSUs यूनिट्स थी, इनमें ये प्रॉब्लम आने शुरू हो गई कि ये सोशल लाइबिलिटी के तौर पे ज़्यादा इनका वो हो गया, सोशल लाइबिलिटी के तौर पे ये ज़्यादा डेवलप हो गई, मतलब अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट इनका हुआ। लीकेज, इनएफिशिएंसी एंड करप्शन हैड बिकम अ रैम्पंट इन द PSUs दैट देयर प्राइवेटाइजेशन वाज कंसीडर्ड एज द ओनली रेमेडी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के पास एक ही रेमेडी रह गई थी, वो रह गई थी प्राइवेटाइजेशन। जितनी भी PSUs थी उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। Accordingly, in 1991, the government decided to phase out public enterprises by selling its equity to the private entrepreneur. Privatization has to replace public ownership of large number of enterprises. However, in view of their inefficient performance, Navratna were to be retained as public sector enterprises. Indeed, the government decided to upgrade their functional freedom with the view of enhancing their competitive growth. नवरत्न तो अभी भी इंडिया की कहना चाहिए कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर ही है, मतलब गवर्नमेंट ही उनकी ऑनरशिप अभी लिए हुए है। अभी काफ़ी चेंजेस आ गया है, गवर्नमेंट ने काफ़ी अपग्रेड कर दिया है उनके फंक्शंस को, अब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ उनकी एक जनरेट हो गई है। Now the next topic is given, that is the gains and losses of the privatization. First point is privatization implies supremacy of self interest over social interest. अब ये मेन जो प्राइवेटाइजेशन था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा इंटरप्शन हुआ इधर पे, तो मीन्स उनका ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, तो सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया था बजाय सोशल इंटरेस्ट के। व्हेन सेल्फ इंटरेस्ट प्रिवेल्स, द एंटरप्रेन्योर वर्क विद 100% कमिटमेंट एंड एफिशिएंसी बिकेम्स द कंडीशन ऑफ सर्वाइवल फॉर द वर्कर्स। हाई प्रोडक्टिविटी इज द रिजल्ट। Privatization expects private enterprises to work in the competitive environment, both domestic as well as international. Privatization का सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि जो कॉम्पिटिटिव एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। तो उससे क्या होगा कि प्रॉपर सब वर्क ही करेंगे, सारे कहना चाहिए वर्कर्स, पूरा जो कंपनी है प्रॉपर वर्क करेगी, क्योंकि उन्हें कंपटीशन फेस करना है। वो अब अपग्रेडेशन भी करेंगे, मॉडर्नाइजेशन भी करेंगे, और वो बेसिक रिक्वायरमेंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट की। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स diversification of production. Unlike PSUs, private sector enterprises invariably generate high profit. These are used for the expansion and diversification of production. And privatization promotes consumer sovereignty. High degree of consumer sovereignty implied wider choice and better quality of life. Now some losses, or we can say that some demerits of privatization are that socialistic pattern of the society is left to survive only as a theoretical possibility. अब क्योंकि जब प्राइवेट बिजनेसमैन आ जाता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आ जाता है, तो वो सोशल इंटरेस्ट को इग्नोर करके सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है। मीन्स अब ये सब किताबी बातें ही रह जाती हैं, सोशल पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। मीन्स अब वो सर्वाइव उतना नहीं कर पाता, थ्योरेटिकली ही रह जाता है। एंड प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज, बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस ओनली फॉर दोज हु हैव मीन्स टू बाय देम। अब प्रोडक्शन सिर्फ किसके लिए होता है? जिनके पास पैसा है उन्हें खरीदने के लिए, सोशल वेलफेयर नहीं होता है। व्हेन प्राइस राइजेज, weaker section of the society suffer deprivation. Sirsila tragedy is the notable evidence on to this point. यहाँ पे ट्रेजिडी दी हुई है, आंध्र प्रदेश की एक ट्रेजिडी थी ये सिरसिला आंध्र प्रदेश का एक स्मॉल टाउन है जो पावरलूम इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। वहाँ के जो आसपास के लोग थे, गांव के लोग, उनके लिए ये सबसे बड़ा लिवलीहुड का साधन था। पर प्राइवेटाइजेशन के कारण क्या हुआ, जो पावर सप्लाई था वहाँ पे, जो इंडस्ट्री थी, वो किसके हाथों में दे दी गई? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के हाथ में दे दी गई। तो वो जो वहाँ पे जो रेट्स पावर के राइज हुए थे इलेक्ट्रिसिटी के, उसके कारण अल्टीमेटली बर्डन किस पे आया? उस इंडस्ट्री पे आया। इंडस्ट्री ने क्या किया? वेजेस को कट करना शुरू किया। अब वेजेस कट हुई तो जो प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ था वो सफ़र होने लगा, मतलब प्रोडक्शन के लिए पैसा ही नहीं बचता था और वेजेस के लिए भी कम पैसा मिलता था। अब जब वेजेस कम मिलेंगी तो जो वर्कर्स थे उनका सब्सिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो पाया और उन्होंने सुसाइड कमिट करना शुरू कर दिया। और ये कंडीशन आई कि अबाउट 50 वर्कर्स कमिटेड सुसाइड। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द सिरसिला ट्रेजेडी।
Now the third component of new economic policy, or we can say that economic reform, that is globalization. Globalization means integrating the economy of the country with the economies of other countries under condition of free flow of trade and capital across borders. Globalization मतलब ये होता है कि अपनी इकोनॉमी, अपनी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको और अदर कंट्री की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, ताकि फ्लो ऑफ ट्रेड जो है, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो सके across the borders. Globalization may be defined as the process associated with increasing openness, growing economic interdependence and deepening economic integration in the world economy. Economic reforms aim at integrating the Indian economy with the global economy. जो मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आया था उसका मेन मोटिव ये था कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना. एज अ रिजल्ट देयर विल बी अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया को जोड़ना इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एसेट्रा. Here, next topic is policy strategies promoting globalization of the Indian economy. Following are some or we can say that some important policy strategy that have influenced the process of globalization. That is, first, increase in equity limit of foreign investment. Equity limit of foreign capital investment has been raised initially from the initial 40%. It now ranges between 51 to 100%. इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है उसकी जो रेंज थी, कहना चाहिए कि उसकी जो लिमिट थी उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया, 51 to 100% कर दिया गया. इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 100% हैज़ बीन अलाउड विदाउट एनी restrictions or rat tapism. Export trading houses have now allowed foreign capital investment up to the 100%. Next is partial convertibility. To achieve the objective of globalization, partial convertibility of Indian rupees has been allowed for the following transaction: import and export of goods and services, payment of interest and dividend on the investment, remittance to meet the family expense. Remittance मतलब होता है जो, जैसे सपोज कोई बंदा है इंडिया में पैसे कमाता है, बाहर बेचता है, या बाहर कमाता है इंडिया में बेचता है, तो वो रेमिटेंस कहलाएगा, जो फैमिली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो देता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी बिटवीन इट डज नॉट कवर कैपिटल ट्रांजेक्शन. Next is long-term trade policy. In conformity with the economic reform, foreign trade policy is enforced for longer duration, implying that is liberal policy. Under this policy, all restriction and controls on foreign trade have been removed. Open competition is encouraged. Next is reduction in tariffs. Tariff means it refers to the barriers on import through high import duty. जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती है ना, हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़, उनको हम टैरिफ बैरियर्स कह सकते हैं. इन ऑर्डर टू इनकरेज कम्पिटिटिवनेस, टैरिफ बैरियर्स हैव बीन विदड्रॉन ऑन मोस्ट गुड्स ट्रेडेड बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड लास्ट पॉइंट इज withdrawal of quantitative restrictions. Since 2001, the quantitative restriction on all import items have been totally withdrawn. This is in conformity with India's commitment to the WTO, World Trade Organization. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एन अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसी. LPG तो हम समझ ही गए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. बट ये इनिशिएट कब हुआ इंडिया में? इट इज इनिशिएटेड सिंस 1991. अप्रेजल ऑफ LPG और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिक्वायर दैट द रीडर अप्रिशिएट्स और अंडरस्टैंड द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द पॉलिसी विद द रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी. बट अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के कंसर्न में इसके क्या मेरिट्स रहे और क्या इसके डीमेरिट्स रहे. First, here topic is given, that is merits of LPG policy. First point is vibrant economy. Indian economy has definitely become a more vibrant economy. Overall level of economic activity has trend up as indicated by GDP growth. New economic policy आने के बाद जो इंडिया का GDP growth है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, ट्रेंड अप काफ़ी हो गया. पोस्ट LPG policies the growth of GDP was shoot up to as high as 8% per annum. Second, it is stimulant to the industrial production. LPG policy have worked as the greater stimulant to industrial production in the Indian economy. It is owing to these policy that IT industry in India has achieved the global recognition. ये LPG का ही कहना चाहिए कि बेस्ट ग्रेट इफेक्ट रहा कि जो IT इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में उन्होंने अपनी ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन अचीव कर ली है इंडिया में, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी काफ़ी हो रहा है. इस वजह से इंडियन इकोनॉमी एक वाइब्रेंट इकोनॉमी के तौर पर निकल के आई है. नेक्स्ट पॉइंट, अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट. माउंटेन फिस्कल
deficit has been a serious threat in the process of investment in Indian economy. From as high as 8.5% of GDP had been brought down to around 3.5% of GDP. Fiscal deficit भी जो था वो भी काफ़ी कम हो गया था. A check on inflation. Owing to the greater flow of goods and services in the economy, the rate of inflation has been lowered. In the year 2011-12 to 13-14, inflation was in the range of 6 to 7%. But in the year 2017-18, it was estimated just to be 2.9%. Consumer sovereignty. Consumer sovereignty has expanded over time. This is evident from the fact that the large variety of goods and services from the diverse global market are now within the easy reach of the buyer. सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो ये मिला कि कंज्यूमर की सोवर्जिनिटी मेंटेन हुई. सोवर्जिनिटी मीन्स एक तरह से ये हुआ कि वो प्रोडक्ट जो हम कभी अपने ग्लोबल मार्केट से या कहना चाहिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज नहीं कर सकते थे, आज हम वो भी परचेज कर सकते हैं. प्रोड्यूसर आर वाइडली रिस्पॉन्डिंग टू द कंज्यूमर चॉइस एंड प्रेफरेंस. कॉन्सिक्वेंटली ओवरऑल लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड हैज टेंड टू राइज एंड इम्प्लाइंग दिस वेलफेयर ऑफ स्टेटस ऑफ द पीपल कैन बी डन. नेक्स्ट पॉइंट इज अ सब्सटेंशियल राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजल्ट. Depletion of forex reserve was one of the compelling reason for the government to shift to LPG policy. Thanks to these policies, forex reserve of the country have now reached to the comfortable level. Good amount of forex reserve enhance economic confidence of the global investor in the Indian market. Next point is flow of private foreign investment. Private foreign investment has taken quantum jump after the adoption of LPG policy. क्योंकि LPG policy आने के पहले मेनली गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती थी, पर प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई हैं. तो जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है अब वो भी मिलने लगा इंडिया को. दिस हैज़ बीन अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ टू द गवर्नमेंट इन द व्यू ऑफ फैक्ट that domestic economy was not generating enough of surplus for this reinvestment and indigenous technology was getting obsolete. It is significant to note that private foreign investment is often accompanied with the innovative technique of the production. Next point is recognition of India as an emerging economic power. भारत को एक emerging economic power के तौर पर देखा जाने लगा. It is owing to the LPG policy and the consequent rise in the overall level of economic activity that India is now being recognized as an emerging economic power of the world. This is particularly by the developed nation of the world not only raises Indian economic ranking in the world but also boosts the confidence of the global investors in the Indian economy as they preferred destination of investment. आज ये दौर आ चुका है भारत में कि जो इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर्स हैं मीन्स फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट शो करते हैं इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. लास्ट पॉइंट, अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू द कॉम्पिटिटिव मार्केट. लॉन्च ऑफ LPG हैज़ कॉज्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द Indian market are now increasingly shedding its monopolistic character and becoming more and more competitive in nature. कहना चाहिए कि अब कॉम्पिटिटिव नेचर जनरेट हो गया, मोनोपोली मार्केट ना रह के एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बन के इंडिया निकला है. फॉर एग्जाम्पल अ कपल ऑफ डिकेड्स, लगभग 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स लाइक कार्स, रेफ्रिजरेटर, ACs, PCs वर द मोनोपोली मार्केट ऑफ द सिलेक्टेड ब्रांड्स ओनली, बट नाउ अ वेराइटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. सो ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं कि क्या बेनिफिट्स मिले हमें LPG के, बट there are certain demerits of LPG policy. All that glitters is not gold. हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती. There are some negative sides of this LPG policy, like first point, neglect of agriculture. सबसे ज़्यादा LPG policy में जो वर्क हुआ LPG का वो किस पे हुआ, LPG policy का इंडस्ट्रीज़ पे. तो इसने कहना चाहिए कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको तो पूरी तरह से ही इग्नोर कर दिया. एग्रीकल्चर सेक्टर का तो पे तो कोई वर्क हुआ ही नहीं है. ग्रोथ ऑफ GDP हैज़ प्राइमरली बीन ओइंग टू द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्चरी सेक्टर. सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ सफर्ड अ सीरियस नेग्लेक्ट एंड इट्स ग्रोथ रेट हैज़ डिप्लेटेड टू मिसरेबल लो 2 to 3% per annum, because of which India is witnessing a widened gulf between rural and urban economy. और उसी के कारण इंडिया जो है वो 2 parts में डिवाइड हो गया, अर्बन एंड ग्लोबल इकोनॉमी, एंड विच स्प्रेड द पॉवर्टी इन द इकोनॉमी. बट ये एग्रीकल्चर के अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उससे हमारी इंडस्ट्रीज़ का क्या रिलेशन है.
सो अगर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हम चाहते हैं तो हमें एग्रीकल्चर का भी डेवलप करना होगा। एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री से ये रिलेशन है कि एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर is the significant source of demand for the industrial product like thresher and harvester. So the slow growth of agricultural sector ultimately spoils the growth of industrial sector. Second main disadvantages of LPG is that that the urban construction of the growth process. LPG policies have resulted in the concentration of growth process in urban areas. Rural areas को तो पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया गया है। थिंक ऑफ एनी MNCs, जब भी हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में सोचते हैं सो यू विल हार्डली फाइंड इट ट्रेस इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। तो आप रूरल एरियाज़ में ही आप उनको ट्रेस कर पाओगे, क्या आप उनको अर्बन एरियाज़ में ट्रेस कर पाओगे? नॉट पॉसिबल। ऑल मल्टीनेशनल कंपनीज आर फोकसिंग ओनली इन अर्बन एरियाज वेयर दे फाइंड कंड्यूसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। दिस वॉज फर्दर वाइडन द अर्बन एंड रूरल गल्फ। रूरल अर्बन गल्फ implies economic dualism which depends social dualism as well. Economic and social dualism are always a big threat to the process of growth and development. Third point is economic colonialism. India suffered nearly 200 years of political colonialism during the British rule. Now, while multinational companies are expanding their economic control, we might suffer a sort of economic colonialism, implying a situation where MNCs are exploiting the Indian market to sell their product, and in the process, domestic producers are marginalized owing to their poor competitive strength. Multinational companies ने तो एक अपना अच्छा रेपुटेशन बना लिया इंडियन मार्केट में, उनका प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है, पर उसके कारण जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। स्प्रेड ऑफ MNCs in the country as a consequences of LPG policies has resulted large scale spread of consumerism. A wide variety of global brands in the market has induced the masses to become spendthrift, going beyond their means. The Indian society is adapting itself to the Western culture of the spending through borrowing. अब वो जो वेस्टर्न कल्चर है ना वो भी इंडिया में आ गया, उधार लेके भी खर्च करने तैयार हैं, पर खुद जितना उनके पास पैसा है उसमें उतना वो लाइफ स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। जो कंज्यूमर्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई है उनकी इनकम से भी ज़्यादा। दिस में एक्सपांड साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर बट सर्टेनली इनहेंस द वल्नरेबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड एज अ कंज्यूमर्स। नेक्स्ट इज लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। LPG हैज़ एक्सेलरेटेड the growth process of the Indian market, but it is lopsided. It is not an inclusive growth process. It does not include all the sectors of the economic growth process। तो हुई है, इंडिया की ग्रोथ काफ़ी हुआ है, डेवलपमेंट भी हुआ है, बट लोपसाइडेड हुआ है। लोपसाइडेड मतलब अगर इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, तो सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, बट एग्रीकल्चर सेक्टर को टोटली इग्नोर कर दिया गया। In fact, it is just IT focused growth process which is gradually overshadowing the process of industrialization besides neglecting the farming sector. It is alarming to note that owing to the liberalization and globalization, the Indian farmer is shifting to the production of cash crops for the foreign market, causing shortfall of domestic supplies of the food grain. और अब ये कंडीशन आ गया कि जो हमारा इंडियन फार्मर है वो कैश क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस करने की तरफ भाग रहा है, उनका जो प्रोडक्शन है वो कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो गया क्योंकि वो फॉरेन मार्केट में अपना कैश क्रॉप सेल करना चाहते हैं, और उसके कारण जो डोमेस्टिक जो फूड ग्रेन्स है उसकी सप्लाई कम हो गई है। ये सबसे बड़ा डीमेरिट कहना चाहिए LPG का। नेक्स्ट इज कल्चरल एरोजन। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो led to the cultural erosion in the Indian society. Following are some important observation in this concept. Economic prosperity has taken lead over all other parameters. जो इकोनॉमिकली कहना चाहिए कि जो प्रॉस्पेरिटी थी LPG के पहले वो काफ़ी कम हो गई है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड वेल ऑफ रिगार्डलेस ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फैमिली और सोसाइटी। अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इग्नोर करके हर कोई इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहता है। लॉयल्टी टुवर्ड्स द फैमिली एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द सोसाइटी विच इज़ यूज टू बी अ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द इंडियन सोशल कल्चर आर बीइंग डिस्कार्डेड एंड एज यूजलेस वर्च्यू टू द वेक ऑफ मटेरियलिज्म। काफ़ी इग्नोर कर दिया गया है, इकोनॉमिक कल्चरली इरोजन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अब विच वे टू गो, अब हमें किस तरह से हम आगे बढ़ें, किस दिशा में हम आगे बढ़ें, किस रास्ते पे अब हम चलें। शुड वी और शुड वी नॉट सब्सक्राइब टू LPG पॉलिसी, क्या हमें इसको यूज़ करना चाहिए, करते रहना चाहिए या बंद कर देना चाहिए।
इट इज़ डिबेटेबल इशू, ये बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू बन चुका है. बट अवॉइडिंग द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ LPG, प्रॉज एंड कॉन्स मीन्स मेरिट एंड डिमेरिट. द +2 graders can definitely make one concentrate observation. The LPG policy are the only way out to accelerate the pace of growth and development. Indeed, pursuit of LPG policies was to great extent a matter of economic compulsion rather than a matter of choice for the politician of the country. हम ये कह सकते हैं कि जो LPG पॉलिसी है वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ का साधन होना चाहिए, एक सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, बल्कि वो ये नहीं होना चाहिए कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो अपने हिसाब से अपने बेनिफिट के लिए उसका यूज़ करें. हाउएवर, अ कंपल्सन शुड नेवर मीन एन ऑब्जेक्ट सरेंडर. इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट LPG पॉलिसीज आर परसुएड with guarded precaution. Notably, we can say that we must see that it was do not surrender to big players in the international market. We must see to that we do not compromise with economic interest of our domestic producers. LPG का यूज़ करना ये नहीं हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनका पूरी इकोनॉमिकली वो वीक हो जाए, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट खत्म हो जाए, नहीं. वाइल अलाउइंग अ फ्री एक्सेस टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द इंडियन मार्केट. जब हम अपने इंडियन मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं तो हमें अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी ध्यान रखना है. वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट बिकम इकोनॉमिकली सबसर्विएंट टू मल्टीनेशनल कंपनीज. हमें मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर ही टोटल इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं होना है. वी मस्ट बी इन पोजिशन टू चैनलाइज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मोर इन टू द एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन रिटेल ट्रेडिंग और फास्ट फूड जंक्शन लाइक KFC एंड डोमिनोज. KFC और डोमिनोज विदेशों में ही यूज़ होता था. जब आप विदेश घूमने जाते थे तभी आप डोमिनोज की बात करते थे, पर अब ये इंडिया की कई सिटीज़ में आ गया है डोमिनोज और KFC. सो ज़रूरत क्या है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारे इंडिया में हो रहा है उसका यूज़ हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में करें, एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, बजाय हम अपनी रिटेल ट्रेडिंग या फास्ट फूड जंक्शन ना बनाएं इंडिया को. मींस रिटेल ट्रेडर्स जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए. उनका बिजनेस जैसे चलता था प्रॉपर वे में और उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट ही हो तो LPG अच्छा. अदरवाइज LPG पर गवर्नमेंट को वर्क करने की काफ़ी ज़रूरत है.